Students, today we are going to discuss very important law. The name of this law is Gauss's law. This is in your second year syllabus of physics, or it is in the first chapter. The name of that chapter is electrostatic. So here we are going to discuss the Gauss's law. This law is very important according to examination point of view. You have this law as a long question in your paper. Now Gauss's law is related to electric flux. As already I explained you about the electric flux, so first of all revise this flux in your mind. पहले से मैंने आपको फ्लक्स एक्सप्लेन किया हुआ है. फ्लक्स आई टोल्ड यू फ्लो, इट्स मीन फ्लो. Now flow of what? Flow of electric field lines. Flow of electric field lines through a surface. So Gauss's law is actually related to electric flux, mean related to flow of electric field lines और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू द सरफेस. गॉसेस लॉ में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लक्स को. फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पास होना. कहाँ से पास होना? किसी भी सरफेस से. तो यहाँ पे हम गॉसेस लॉ में फ्लक्स को ही डिस्कस करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करेंगे और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम सरफेस पे डिस्कस करेंगे. तो Gauss's law is actually related to electric flux or flow of electric field lines through the surface. Now students, for this Gauss's law where we are going to discuss the flux or flow of that flux or flow of electric field lines through the surface, here Gauss said we have to consider a Gaussian surface. Gauss अपने law में कहते हैं हमें Gaussian surface को लेके काम करना है. अब गॉसियन सरफेस क्या है? गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप. गॉसियन सरफेस इमेजिनरी क्लोज सरफेस है और वो किसी भी शेप की हो सकती है. यानी गॉसेस लॉ में जब हम फ्लक्स को डिस्कस करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करेंगे और जिस सरफेस पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करेंगे उसके लिए गॉसेस कहता है कि गॉसियन सरफेस को चूज करें. गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस है. रिमेंबर, इमेजिनरी सरफेस विच इज क्लोज, जो कि क्लोज होनी चाहिए और ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप की हो सकती है. तो इन गॉसेस लॉ वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू अ गॉसियन सरफेस. Gaussian surface is actually imaginary closed surface of any shape. So as I told you about the Gauss's law related to electric flux, flow of electric field lines through a Gaussian surface. So how we will define it? Statement is in this way. Phi is equals to 1 upon epsilon naught. This is called epsilon naught. This is called phi. Phi is equals to 1 upon epsilon naught multiplied by Q. In this formula of Gauss's law, this is phi. This is electric flux, representation of electric flux. This is epsilon naught. All of you know in Coulomb's law, epsilon naught mean presence of any material or medium. Q stands for charge. So according to Gauss's law, phi mean flux is equals to 1 upon epsilon naught multiplied by Q. How we will define this derivation or this formula? According to Gauss, Gauss said electric flux through any closed surface depends on the charge enclosed in it and medium present in the Gaussian surface. Gauss कहता है कि गॉसियन सरफेस जो हम चूज कर रहे हैं, जो एक इमेजिनरी सरफेस है और क्लोज्ड है और कोई भी शक्ल उसकी हो सकती है, उसमें जो फ्लक्स है मीन जो उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो डिपेंड करता है चार्ज. हाउ मेनी चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन दैट सरफेस. उस सरफेस पे कितने चार्जेस हैं. ठीक है. सेकेंडली वो डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ एनी मटेरियल और मीडियम ऑन दैट सरफेस. उस सरफेस पे कौन सा मटेरियल है, कौन सा मीडियम है, क्योंकि मटेरियल और मीडियम का जो प्रेजेंस है वो एक्सपेरिमेंट में कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व रहता है. तो अकॉर्डिंग टू गॉस's लॉ ये जो डेरिवेशन है, दिस इज इन दिस वे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is dependent on the presence of charge, number of charges or single charge which can be present on that Gaussian surface and the presence of any material or medium on that surface.
ये जो फॉर्मूला है यही गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट हमें सिर्फ ये बता रही है कि हम लेंगे इमेजिनरी सरफेस जो क्लोज होनी चाहिए, जो किसी भी शेप की हो सकती है। उस इमेजिनरी सरफेस पे कितने चार्जेस हैं, क्या उस पे सिंगल चार्ज है, डबल चार्ज है, ट्रिपल चार्ज है, हाउ मेनी चार्जेस आर प्रेजेंट देयर, और उस सरफेस पे कौन सा मटेरियल और मीडियम मौजूद है। तो चार्ज के अकॉर्डिंग और उस सरफेस पे मौजूद मटेरियल और मीडियम के अकॉर्डिंग हमारे पास होगा फ्लक्स। फ्लक्स मीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो गॉसियन सरफेस से पास होंगी वो डिपेंड करेंगी चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन दैट सरफेस और डिपेंड करेंगी प्रेजेंस ऑफ मटेरियल और मीडियम ऑन दैट सरफेस। अब गॉसेस लॉ के मैथमेटिकल प्रूफ के लिए गॉसेस ने कहा कि सपोज दिस इज द गॉसियन सरफेस और दिस गॉसियन सरफेस इज इन द शेप ऑफ स्फीयर और here one single unit charge is present in its center, or he said divide this complete Gaussian surface into small patches or part or give them name, like the first patch is A1, second is A2, third patch area is A3, fourth patch area is A4, up to so on number of patches would be there, so last patch name is AN. Or he said because charge is present here, so intensity is the strength of force around the charge. So intensity is also over this sphere, over this Gaussian surface, or for each area, for each patch intensity is E1, E2, E3 up to so on, for last patch intensity is En. अब क्योंकि हम जा रहे हैं, जो गॉसेस लॉ का फॉर्मूला आपने देखा, फाई फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1 upon epsilon naught multiply by q, flow of lines, electric field lines, which depends on the presence of charge on the Gaussian surface, which depend on the presence of material or medium on the Gaussian surface. तो उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को प्रूव करने के लिए गॉसेस ने एक सरफेस ले ली जो कि इमेजिनरी सरफेस है, जो कि क्लोज है, और क्योंकि ये इमेजिनरी है, क्लोज है, तो गॉसेस ने ऑलरेडी आपसे कहा कि इस सरफेस को हम नाम दे देंगे गॉसियन सरफेस का। तो यहाँ पे जो गॉसियन इमेजिनरी सरफेस है, दिस इज इन द शेप ऑफ स्फीयर, स्फीयर की शेप में है। और फिर वो कहते हैं इस पूरे स्फीयर को आप डिवाइड करें, इसके पार्ट्स बना दें, एलिमेंट्स बना दें, पैचेस बना दें, और हर एलिमेंट का क्योंकि एरिया है तो हर एलिमेंट के एरिया को नाम दे दें। इन दिस वे A1, A2, A3, A4 नंबर ऑफ एरियाज और पैचेस वुड बी देयर। तो लास्ट पैच का जो एरिया उसको AN नाम दे देते हैं। और साथ ही उसने कहा क्योंकि चार्ज प्रेजेंट है इस गॉसियन सरफेस पे, तो जहाँ चार्ज है वहाँ इंटेंसिटी भी लाई करती है। इंटेंसिटी आपको पता होनी चाहिए, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अबाउट द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स अराउंड द चार्ज। तो यहाँ चार्ज है तो यहाँ फोर्स भी है, यहाँ इंटेंसिटी भी है। तो इंटेंसिटी हर पैच के लिए रिप्रेजेंट कर देते हैं E1, E2, E3, E4 अप टू सो ऑन, लास्ट पैच के लिए इंटेंसिटी En। तो हम जा रहे हैं गॉसेस लॉ का जो फॉर्मूला है उसको मैथमेटिकली उसको प्रूव कर रहे हैं। उसके लिए गॉसेस के अकॉर्डिंग दिस इज अ गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी surface which is closed, which is in the shape of a sphere, or according to him we have to divide this sphere into small patches, or then we will give the name to all the patches in this way: A1, A2, A3 up to so on AN. Or because charge is present in the center, so intensity is also here for all the patches. Intensity is in this way: E1, E2, E3 up to so on En. Now what we have to do? We have to write the formula of flux for all these patches. In तमाम patches के लिए हमने flux का formula लिखना है. All of you know the formula of flux. Phi is equals to E dot A, dot product of two vector quantities E and A is equals to flux. So here we have to write the formula of flux for all the patches. Number of patches or parts or elements are present over this sphere. इस sphere पे हमने बहुत सारे patches बना दिए, parts बना दिए, elements बना दिए, small elements, small parts, और हर पैच, हर एलिमेंट को हमने नाम दे दिया था A1, A2, A3 up to so on AN.
और इंटेंसिटी के प्रेजेंस पे हमने हर एरिया की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर दिया था E1, E2, E3 अप टू सो ऑन En. नाउ वी हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स फॉर ऑल द पैचेस. तो अगर मैं फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स लिखूं, फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय phi इज इक्वल्स टू फ्लक्स फॉर फर्स्ट पैच. फर्स्ट पैच की बात करते हैं. फर्स्ट पैच का जो एरिया है वो है A1. फर्स्ट पैच के लिए जो इंटेंसिटी है वो है E1, इंटेंसिटी रिलेटेड टू चार्ज विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर. तो फर्स्ट पैच के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला E1 डॉट A1 प्लस सेकेंड पैच के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला E2 डॉट A2 प्लस थर्ड पैच के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला E3 डॉट A डेल्टा A3. और फॉर द लास्ट पैच द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स इज En डॉट An. तो formula of flux for all the patches is in this way. For first patch, formula of flux E1 dot delta A1. For second patch, E2 dot delta A2. For the third patch, E3 dot delta A3. Or for the last patch, En dot delta An. So this is the formula of flux for all the patches. ठीक है. अब गॉसेस कहता है, सपोज कर लेते हैं that all the intensities are equals to each other. Intensity for first patch is equals to intensity for second patch. Similarly, intensity for these two patches is equals to intensity of third patch. Or in this way, all the intensities are equals to the last intensity of the last patch or area. So if all the intensities for all the patches are equal, so he said that make them equals to E. E stands for total intensity of the charge on that sphere. गॉसेस कहते हैं, सपोज कर लेते हैं जितने भी पैचेस हमारे पास हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं सरफेस पे, स्फीयर सरफेस पे, जो कि एक इमेजिनरी सरफेस है, हम सपोज कर लेते हैं हर पैच की जो इंटेंसिटी है वो एक दूसरे के इक्वल है. और फाइनली बिकॉज ऑल द इंटेंसिटीज आर इक्वल्स टू ईच अदर, सो वी विल से कि दे ऑल आर इक्वल्स टू E. वो तमाम E के इक्वल है, टोटल इंटेंसिटी ऑफ द स्फीयर. व्हाई ही इज सेइंग दिस थिंग कि ही सेड, सपोज कर लेते हैं दैट चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और ड्यू टू द प्रेजेंस एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इज देयर. वहाँ पे इंटेंसिटी की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है बिकॉज चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर. तो अगर चार्ज स्फीयर के सेंटर में है, इक्वल स्ट्रेंथ और फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है फॉर ऑल द पैचेस, तो तमाम इंटेंसिटीज जो हैं पैचेस की वो इक्वल है. और बजाय इसके कि हम उसको E1, E2, E3 लिखें, वी विल से दे ऑल आर इक्वल्स टू E. वो E के इक्वल हैं. तो ये हो गया फ्लक्स का फॉर्मूला स्टूडेंट्स फॉर ऑल द पैचेस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स विच इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड A. तो फ्लक्स का फॉर्मूला फॉर फर्स्ट पैच, फ्लक्स का फॉर्मूला फॉर सेकेंड पैच, अप टू सो ऑन चलते जाएं. फ्लक्स का फॉर्मूला लास्ट पैच के लिए. हमने स्फीयर को नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड किया हुआ है, हर पैच के एरिया को नाम दिया हुआ है, हर पैच पे इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया है क्योंकि चार्ज है, जहाँ चार्ज है वहाँ इंटेंसिटी है. और फिर हमने इसमें एक कंडीशन अप्लाई कर दी अकॉर्डिंग टू गॉस के अकॉर्डिंग कि जितने भी पैचेस हैं दे ऑल हैव इक्वल इंटेंसिटी, उनकी इक्वल इंटेंसिटी. और रीज़न he said that charge is present in the center of the sphere, or due to the presence of that charge in the center, equal distribution of intensity is there. So if all the intensities for all the patches are equal, so we will say it is equals to E. तो जो फर्स्ट डेरिवेशन है उसको हम लिख सकते हैं phi is equals to E. E mean intensity for all the patches, और इसको as a common factor हम ले लेते हैं. Remaining we have all the areas for all the patches. तमाम पैचेस के लिए एरियाज रह जाते हैं A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN. और इंटेंसिटी क्योंकि हर एक में सेम है तो वी विल टेक इट एज अ कॉमन फैक्टर, उसको एज अ कॉमन ले लेते हैं. और रिमेनिंग द एरियाज ऑफ द ऑल द पैचेस इज हेयर. फिर phi इज इक्वल्स टू E एज इट इज.
अब अगर मैं तमाम पैचेस जो स्फीयर पे हैं, तमाम एलिमेंट्स जो स्फीयर पे हैं, उनके एरियाज को कंबाइन करूं तो दिस इज इक्वल्स टू टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर का टोटल एरिया बन जाएगा, क्योंकि स्फीयर को ही डिवाइड किया हुआ है हमने स्मॉल पार्ट्स में। अब अगर उन तमाम स्मॉल पार्ट्स को मैं मिला दूं तो दिस इज इक्वल्स टू total area of the sphere. In this way, formula of flux is equals to E. E stands for total intensity for all the elements on the sphere, for all the patches which are present on the sphere. A stands for total area of the sphere, sphere का total area. अब phi is equals to intensity. Intensity का formula ये हमने लिखा है, this is according to the formula, this is according to Gauss's law. ये Gauss's law के अकॉर्डिंग है इंटेंसिटी का फॉर्मूला। हम इसको प्रूफ कर चुके हैं इंटेंसिटी के ही टॉपिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टॉपिक में ये हमने प्रूफ किया है। और कैसे प्रूफ किया है? बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। हम क्यों इसको यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे भी एक सिंगल चार्ज है स्फीयर में जो सेंटर पे मौजूद है। उस सिंगल चार्ज पे जो स्फीयर पे मौजूद है, कुछ डिस्टेंस r पे हमने एलिमेंट्स लिए हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग हम चार्ज की फोर्स स्ट्रेंथ को भी देख रहे हैं, और हम वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यानी प्रेजेंस ऑफ मटेरियल और मीडियम को भी शो कर रहे हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। वो हमने लिखा जो हमने इंटेंसिटी के टॉपिक में ऑलरेडी ड्राइव किया हुआ है। एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग जो डेरिवेशन है दिस इज द गॉसेस लॉ। ये गॉसेस लॉ है जो हमने ऊपर डिफाइन किया। और गॉस ने कहा कि जो फ्लक्स है गॉसियन सरफेस पे, जो फ्लक्स है यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो डिपेंड करता है गॉसियन सरफेस पे मौजूद चार्ज पे और गॉसियन सरफेस पे मौजूद किसी भी मटेरियल और मीडियम पे। कि हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं जो इमेजिनरी है, जो क्लोज है, जो कोई भी शक्ल हो सकती है, और उस पर कितना चार्ज है, क्या सिंगल चार्ज है, डबल चार्ज है, ट्रिपल चार्ज है, हाउ मेनी चार्जेस आर प्रेजेंट देयर, तो उसके अकॉर्डिंग और उस सरफेस का पे क्या मटेरियल, क्या मीडियम मौजूद है, क्योंकि मटेरियल और मीडियम का अफेक्ट हमारे काम में इन्वॉल्व रहता है। तो इन दो फैक्टर्स के अकॉर्डिंग फ्लक्स वहाँ होगा। फ्लक्स मीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच विल पास थ्रू द गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस से गुजरती हैं। तो दिस इज द मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ। इस प्रूफ के लिए हमने पूरा एक अदद गॉसियन सरफेस ली जिसको हमने स्फीयर शेप में लिया और हमने उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया, पैचेस बनाए, पैचेस को नाम दिया। उस स्फीयर में सेंटर में चार्ज प्रेजेंट था, उसकी वजह से इंटेंसिटी भी थी, इंटेंसिटी को लिया तमाम पैचेस के लिए, और फिर मैंने तमाम पैचेस के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स। और फिर हमने सपोज कर लिया फॉर ऑल द पैचेस इंटेंसिटीज आर इक्वल्स, तमाम पैचेस की इंटेंसिटी इक्वल्स है। रीजन इज दैट कि चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। So when intensities are equal, so we will not take them in this way E1, E2, E3 because all intensities are equal. So we will say this is equals to E. E stands for total intensity of all the patches. फिर इसी फॉर्मूले में इंटेंसिटी बिकॉज सेम फॉर ऑल द पैचेस वी विल टेक इट एज अ कॉमन फैक्टर। रिमेनिंग आर द एरियाज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। और अगर हम तमाम एलिमेंट्स के एरियाज को कंबाइन करें तो दिस इज इक्वल्स टू टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, क्योंकि स्फीयर की ही डिवीजन की गई है। तो जब तमाम एरियाज जो एलिमेंट्स स्फीयर पे उनको मिला दें तो दिस इज इक्वल्स टू टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर। So E stands for intensity for all the patches, A stands for total area of the sphere. इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग लिखा है, जो हमने इंटेंसिटी के टॉपिक में ही ड्राइव किया था। ये फॉर्मूला इस तमाम सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, और एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। रिजॉल्व करने के बाद जो डेरिवेशन है दिस इज एक्चुअली डिफाइनिंग द गॉसेस लॉ। ये गॉसेस लॉ को डिफाइन कर रही है। याद कर। So student, here we will explain the Gaussian surface in this way. Okay, this is also one more Gaussian surface or shape is in this way. So we will take any arbitrary shape for this Gauss's law. Gauss's law के लिए हम कोई भी shape ले सकते हैं। और here number of charges are present over this surface, बहुत सारे charges यहाँ मौजूद हैं।
but remember the explanation is related to same as I explained you earlier, that flux is equals to q upon epsilon naught. जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इक्वल है चार्ज और नंबर ऑफ चार्जेस या सिंगल चार्ज, डबल चार्ज, ट्रिपल चार्ज विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेसेस, और ये डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ मटेरियल और मीडियम ओवर दिस सरफेस। तो गॉसियन सरफेस की एक और शेप जो कोई सी भी मैंने आपसे कहा हो सकती है, उसके लिए भी फ्लक्स का यही फॉर्मूला होगा जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। तो हम कह सकते हैं कि गॉसेस लॉ जो है टोटली जो ले रहा है गॉसियन सरफेस, उसमें गॉसेस लॉ में जो फ्लक्स है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन द शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस, यानी गॉसेस लॉ में हमारे पास जो फ्लक्स है वो शेप पे डिपेंड नहीं करता। तो दिस इज अगेन वन मोर गॉसियन सरफेस, or this is here we have number of charges which are present over that surface. For this surface we have same derivation according to Gauss's law, or Gauss said कि this flux which will through the surface is independent on the shape.